ललन टॉप की चुनाव यात्रा पहुंच चुकी है मेघालय के उस गांव में जो न सिर्फ इस जिले का, मेघालय का, देश का, बल्कि एशिया का सबसे साफ गांव है। इस गांव की कहानी ये है कि इस गांव का बच्चा हो या फिर बूढ़ा, हर कोई इस गांव को साफ करता है और इस वजह से ये गांव एशिया का सबसे साफ गांव करार दिया गया है। तो ऐसे में इस गांव की क्या खासियत है और इस गांव के लोग कैसे इस सफाई को मेंटेन रखते हैं, ये समझने के लिए आज हम इस गांव में हैं और आपको चलते हैं, दिखाते हैं कि कैसे इस गांव को लोगों ने आज तक साफ रखा है। कैसा लगा ये गांव? अच्छी है ना, नीट एंड क्लीन। गांव बहुत बढ़िया है और हम लोग के एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा ही है। फर्स्ट टाइम का एग्जाम खत्म हुआ तो मूड फ्रेश करने के लिए आ गए। तो मूड फ्रेश हुआ कि नहीं? हाँ, हो गया, अच्छा जगह है, मस्त। ये संभव है कि जो इस गांव के लोगों ने किया वैसा ही हम अपने यूपी में या बिहार में या झारखंड में भी कर सकते हैं? डेफिनेटली हो सकता है, कोई भी जगह हो सकती है, नोएडा क्या और कानपुर के। यहाँ की सफाई देख के तो ऐसा लगा कि खुद से, अगर जैसे अभी आए एकदम से रैपर फटा तो फिर लगा सफाई है, तो फिर खुद से जाके डस्टबिन में आता है, फील आता है कि अब डस्टबिन ढूंढो पहले। अभी हमने आधा देखा है और भी आगे लग रहा है कि और भी सुंदर होगा। आप जैसे ही एशिया के इस सबसे साफ गांव में प्रवेश करेंगे, आपको प्रवेश द्वार पर ही कुछ छोटी छोटी दुकानें मिलेंगी जहां पर घर में सजाने की कुछ छोटी छोटी चीज़ें, जैसे ये इस तरह की चीज़ें मिलेंगी। और ऐसी ही एक दुकान में हम पहुंचे तो हमें क्लास 9th में पढ़ने वाली, क्या नाम आपने बताया? Nadia Lee Marvin. नादिया दी। तो नादिया दी, डू यू नो हिंदी? I just understand, but not much. Yeah. So, since how long you are here in this cleanest village? Actually, till from 2021, I came here, but when this lockdown starts, after a lockdown, so we came to settle here because we feel that to live here it's so peaceful. We feel peaceful. So you belong to? Actually, I'm from Shillong. Okay. Yeah. So you are from My dad Shillong? is from this village. Yeah. Your dad is from this village, and you are located in Shillong. So you have shifted to this village in 2021. Yeah. So how different the life is from as compared to Shillong to this village? Most thing after I settle here, so I feel that I got a fresh air. Like in Shillong, we pollution is there, air pollution also. So mostly I just got a fever. Like I'm not feeling well. But since after I came here, so most thing I got healthy, and that is the important one. So Yeah. have you ever seen such kind of cleanest places nearby I think Shillong? In Shillong, I never seen like in this place. That's why this place have teach us how to clean a village, how to be a cleanliness. That is the most things in our I life. have heard that the villagers, they teach kids Yeah, they teach kids. Yeah, they teach kids to clean the village. to clean the village every week, every month, like that. So you have also been taught about this cleanliness. No, actually, when I start my job, so I have to go school. So that's why. But there's another people who don't go school, so they clean it. So before going to But school, we- they have to clean the village. Yeah, yeah, in if- our hometown. Okay. And if they deny to do so, then is there, if the kids deny to clean the village, so is there any punishment clause or something? No, there's no punishment. Yeah, it's for them that they want to clean, but and they keep that for a person who always to clean, and they have to give money for them like a business. Yeah, like that. Okay. Yeah. Because since all people, every people will not have time, right, to So I clean. can say that the kids, they got pocket money if they clean the Yeah, village. if they clean this village, they got Oh, more that's pocket money. That's great. But they didn't do for only the pocket money. But they by themselves, they want to clean the village because most thing they got a healthy body. That's why. Oh. That's the important thing. So you like this village? Yeah, I really like. So Yeah, and I really thank God that I'm here now.
So I just give a glory to Have him. you ever have any thought to dislocate from this place to somewhere else, like Shillong or some other city? I didn't have any idea about that. Actually. So you're happy being here. Yeah, I have been here. When I'm staying in Shillong, also I just inside the home. I have no time to go somewhere, and my mom serves very strictly, so that's why. Okay. So I just helping my mom after coming from school. Also, I just sit at home with my mom, so I help her to do. And what about tourists? About tourists? About this village. They come here in a large number. Yeah, no, but there are seasons for here. In the season, like a puja like that. They are very like what I was said, but in now season it's very less tourists. Okay. Yeah. थैंक यू फॉर टॉकिंग टू अस। तो देखिए, इस छोटी सी बच्ची ने बताया कि ये शिलोंग में रहती थी, इनके पिताजी इसी गांव के रहने वाले थे और ये 2021 में इस गांव में आके बसी। और शिलोंग में थोड़ा पोल्यूशन ज़्यादा है, ट्रैफिक ज़्यादा है और इस गांव में साफ़ सफाई और एयर क्वालिटी बहुत बढ़िया है। ऐसे में ये छोटी सी बच्ची यहाँ जब आई तो यहाँ अच्छा महसूस कर रही है और बहुत खुश है कि वो इस गाँव में है। और उसने एक ख़ास बात बताई कि इस गांव में जो बच्चे हैं, अगर उन्हें पॉकेट मनी चाहिए, ज़्यादा पॉकेट मनी चाहिए, तो सुबह सुबह उठ के पहले उनको गांव की सफाई करनी होती है, उसके बाद वो स्कूल जाते हैं। अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो पॉकेट मनी में कटौती होती है और इसी वजह से बचपन से ही छोटे छोटे बच्चों को ये आदत दिलाई जाती है कि किसी भी तरह से अपना गाँव साफ़ रखो, क्योंकि ये गाँव इस इलाके का नहीं, इस राज्य का नहीं, इस देश का नहीं, बल्कि एशिया का सबसे साफ़ गाँव बना है। तो चलिए गाँव के कुछ और रंग दिखाते हैं। मेघालय घूमने आने वाले पर्यटक मॉलीलॉन्ग में ज़रूर आते हैं और ये सबसे साफ गांव इसलिए भी चर्चा में रहता है क्योंकि पर्यटकों के आने के बाद उन्हें एक ऐसा दृश्य दिखाई देता है जो शायद कहीं और ना दिखे। और इसीलिए पर्यटकों को ध्यान में रखते हुए लोगों ने अपने घरों में इस तरह के बांस के पुल बना लिए हैं और इस पुल के ऊपर आप देखिए कि एक ट्री हाउस बना है। इस तरह से ट्री हाउस के ऊपर चढ़ के आप इस पूरे गाँव को देख सकते हो और कहा जाता है कि यहाँ से बांग्लादेश का बॉर्डर भी दिखाई देता है। अगर इस गांव की आबादी की बात करें तो 450 लोग इस गांव में रहते हैं, लेकिन इन 450 लोगों ने जो करके दिखाया है वो हमारे देश की 125 करोड़ आबादी को सीखना चाहिए। क्योंकि ज़रा इस तस्वीर को देखिए, मैं एक ट्री हाउस पे खड़ा हूँ और ट्री हाउस से जब मैं गाँव को देख रहा हूँ तो आप देखिए कि चाहे घर हो, चाहे घर के सामने का हिस्सा हो या फिर गाँव की सड़कें, हर जगह साफ़ सफाई की व्यवस्था है। और यहाँ पर सुपारी के भी पेड़ हैं, तमाम और भी ऐसे जंगलनुमा पेड़ हैं जिनको मेंटेन करके इस गांव के लोगों ने रखा है। तो यहाँ आपको गांव के अंदर आने के लिए 200 रुपये गांव के क्लीनलीनेस के लिए देना होगा, यानी साफ़ सफाई की मेंटेनेंस के लिए 200 रुपये का चार्ज प्रति गाड़ी, यानी कि एक अगर फैमिली आती है तो 200 रुपये देने होंगे और उसके बाद फिर आप इस गाँव में दाखिल हो सकते हैं। साथ ही इस गांव के लोगों ने बच्चों के लिए कुछ ऐसी भी व्यवस्था की है जिसमें एक ग्राउंड बनाया है। ज़रा इस तस्वीर को देखिए, एक ग्राउंड है, फुटबॉल का ग्राउंड, और इस ग्राउंड की साफ़ सफाई देखकर हैरानी होती है कि इतना बड़ा ये जो मैदान है, इस मैदान में लोगों ने किस तरह से पूरा गांव कंट्रीब्यूट करके इस गांव को साफ़ रखने में आगे आया। और इसी वजह से न सिर्फ ये ग्राउंड बल्कि सड़कें, लोगों के घर के सामने का हिस्सा सब कुछ साफ़ है और इसमें किसी तरह की कोई सरकारी मदद नहीं है। ये गांव के लोगों का इनिशिएटिव है जो कि कई साल पहले शुरू हुआ था और लोगों के आदतों में ये शुमार होता गया और धीरे धीरे स्थिति ये हुई कि आज से लगभग 2 दशक पहले इस गांव को एशिया का सबसे साफ़ गांव करार दिया गया और उसके बाद से लोगों में सफाई की ऐसी आदत पड़ी कि आज ये गांव देश और दुनिया के लिए मिसाल बन गया है। यकीन मानिए, मॉलीलॉन्ग नाम के इस गाँव में आकर मन बहुत खुश हो गया क्योंकि ये गांव वाकई में बहुत खूबसूरत है और बहुत प्रेरणादायी है। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ज़रा इस सड़क को देखिए, जिस तरह से ये सड़क साफ़ सुथरी दिखाई दे रही है। न सिर्फ ये सड़क बल्कि इस गांव का हर एक गली, हर एक बारांदा, हर एक बगीचा, हर चीज़ बिल्कुल साफ़ सुथरी है। ये घर देखिए, ये गांव का एक साधारण सा घर है और इस घर के अंदर की भी अगर आप साफ़ सफाई देखेंगे तो आपको बहुत अच्छी दिखाई देगी। और साथ ही अगर आप बाकी जगहों पर देखेंगे तो गांव वालों ने कुछ इस तरह के इंतज़ामात किए हैं जिससे कि ये गांव और खूबसूरत दिख सके। जैसे बांस से एक बैरिकेटिंग बनाई, इस बैरिकेटिंग के अंदर पौधे लगाए और पौधे भी कुछ इस तरह के जो आपका मन मोह लें। ज़रा आगे आपको लेकर चलें तो आपको दिखाएं कि इस जो पौधों की श्रृंखला है, इस श्रृंखला के पास में आपको हर जगह इस तरह के हाथ से बने हुए डस्टबिन दिखाई देंगे। चाहे गांव वाले हों या फिर टूरिस्ट, हर किसी की जिम्मेदारी है कि जो भी कचरा हो, जैसे हमें भी एक पत्ता दिखाई दे रहा है तो हम इस पत्ते को
इस डस्टबिन में डालें। और ये आदत इस गांव के लोगों की है। साथ ही अगर हम आगे आएँ तो आप देखिए कि ये एक बेंच है जो कि सुपारी के पेड़ की लकड़ी से बनाया गया है, और इस तरह की बेंच भी आपको जगह जगह मिलेगी ताकि जो लोग यहाँ घूमने आते हैं वो इस पर बैठें, थोड़ी देर आराम करें, प्रकृति की सुंदरता को निहारें। और अगर थोड़ा आगे चलेंगे तो अब देखिए तमाम जो टूरिस्ट आते हैं वो इस गांव में सेल्फीज़ लेते हैं, फ़ोटोग्राफ्स बनाते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप देखिए कि कुछ लोग जो घूम रहे हैं, क्योंकि इस गांव की यादें समेट करके लोग न सिर्फ यहाँ की यादें लेकर जाना चाहते हैं बल्कि एक संदेश लेकर जाना चाहते हैं कि अगर इस गांव की तरह खूबसूरती के लिए थोड़ा सा प्रयास अगर कोई करे तो शायद हम अपनी गली, अपना मोहल्ला, अपना शहर, अपना प्रदेश, अपना देश बिल्कुल साफ़ कर सकते हैं। एक चीज़ और दिखाना चाहूँगा, यहाँ पर जो यहाँ सुपारी के पेड़ लगे हुए हैं उसके अलावा तमाम पौधे हैं, और इन पौधों के बीच में हर घर में आपको एक होम स्टे मिलेगा। यानी कि लोगों ने अपनी आमदनी का ज़रिया भी सफाई को बनाया है, क्योंकि सफाई देखने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं, और हर घर में 1-2 कमरे होम स्टे हैं। हम जिस समाज में रहते हैं उस समाज की सबसे छोटी इकाई होती है गांव, और गांव में लोग क्या कर सकते हैं, ऐसा कुछ इस गांव ने दिखाया, जो कि एशिया का सबसे साफ गांव कहा जाता है। और हम भी यहाँ जब आए, हमने इस गांव की प्रकृति की खूबसूरती देखने की कोशिश की। थोड़ा सा काम के बीच में समय निकाल कर थोड़ा टहलते रहे, और इस टहलने के बीच में हमें कुछ पर्यटक मिले जो अलग अलग शहरों से आए हैं। कोई साउथ इंडिया से आया है, कोई यूपी, बिहार, झारखंड से आया है, तो कोई नोएडा, दिल्ली से आया है। ये सारे लोग आखिर इस गांव में आकर क्या सोचते हैं और क्या प्रेरणा लेकर जाते हैं, ज़रा इनकी बातें सुनिए, समझिए, और थोड़ी सी प्रेरणा आप भी लेने की कोशिश कीजिएगा। कैसा लगा ये गांव? अच्छी है ना, नीट एंड क्लीन। हैदराबाद ऐसा साफ है? हैदराबाद थोड़ा पोल्यूशन ज्यादा है, ज्यादा। ये अंदर व्हीकल्स भी नहीं आने देते हैं ना ये लोग। तो इंस्पिरेशन मिला आप लोगों को यहाँ? हाँ, So you are inspired. So when you will return back to your home, you will try to make your area, your colony सराउंडिंग्स clean. आपको भी अच्छा लगा? अच्छा लगा? इतना दूर से आ गया ना, ये देखने को इतना दूर से आ गए। क्या सुनी थी इस गांव के बारे में? नीट एंड क्लीन, एशिया नीट एंड क्लीन विलेज। ऐसा फील हुआ कि एशिया का सबसे क्लीन है? छोटा विलेज है, कैसा है? गांव बहुत बढ़िया है, और हम लोग के एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा ही है। अभी हमने आधा देखा है, और भी आगे लग रहा है कि और भी सुंदर होगा। और ये गांव तो बहुत सारे शहरों से स्वच्छ और सुंदर दिख रहा है। अच्छा, कई बार हम जब बड़े शहरों में रहते हैं तो कूड़ा नगर निगम के ऊपर छोड़ देते हैं कि नगर निगम वाले आएंगे, ले जाएंगे, उनकी जिम्मेदारी है। इस गांव में कोई सरकारी मदद नहीं, गांव के लोगों ने किया। ऐसा लगता है कि नोएडा, दिल्ली में भी ऐसा हो सकता है? देखिए, बिल्कुल हो सकता है। कोई भी चीज़, हमारा मानना है कि कोई भी चीज़ साफ़ रखनी है तो उसके लिए ना गंदा करना ज़्यादा ज़रूरी है। तो अगर ये एक इंडिविजुअल अगर ये हो जाए कि हम गंदा नहीं करेंगे, सरकार और नगर निगम सब अपना अपना काम करती हैं, हमें अपना काम करना चाहिए, तभी कोई सिटी या कोई शहर या कोई कंट्री साफ रह सकता है। डेफिनेटली हो सकता है, कोई भी जगह हो सकती है, नोएडा क्या और कानपुर क्या। इंस्पिरेशन मिला इस गांव में आके? बहुत ज़्यादा मिला। हम लोग सब वैसे भी स्वच्छता और क्लीनता को काफ़ी विश्वास रखते हैं। अभी कुछ सालों में तो देश में अभियान भी चल रहा है, स्वच्छ भारत अभियान। उसका फ़र्क भी पड़ा है। उसका देखिए, लोगों में जागरूकता आई है कि हाँ भाई, स्वच्छता इज़ क्लीननेस नेक्स्ट टू गॉडलीनेस। तो वो लोगों में आई है। लोग ये सोचने लगे कि हम गंदा ना करें, आसपास अपना साफ रखें। और इसका स्लो प्रोसेस है, लेकिन हमारा मानना है कि डेफिनेटली फ़र्क पड़ेगा। धीरे धीरे हो रहा, हो जाएगा। कहाँ के हो आप लोग? बांदा, उत्तर प्रदेश। बांदा। आप? गोरखपुर उत्तर प्रदेश। गोरखपुर। आप? छपरा बिहार। छपरा। किरीबुरू झारखंड। अच्छा, तो यूपी, बिहार, झारखंड तीनों। और आप लोग सब लोग स्टूडेंट हैं? कहाँ से, कहाँ पढ़ाई करते हैं? NIT अगरतला में। अगरतला। और यहाँ कैसे जाना, कितना दूर? अरे फिर जैसे फर्स्ट सेम का एग्जाम खत्म हुआ तो मूड फ्रेश करने के लिए आ गए। तो मूड फ्रेश हुआ कि नहीं? हाँ, हो गया। अच्छा जगह है, मस्त। अच्छा है। हाँ। ये गांव कहते हैं कि इसको एशिया का सबसे साफ गांव है, ऐसा लगा क्या? मेरे को तो जब स्टार्टिंग में दूर से ही समझ में आ रहा था कि साफ हो रहा है। हाँ, आधे रास्ते जंगल में ही साफ सफाई दिखने लगी थी मेरे को। तो मतलब पहले से ही जब एंटर कर रहे थे तभी से फील हुआ कि साफ है। हाँ, अच्छा, ये मेघालय कैसा लगा आपको अभी तक? मेघालय में क्लीनेस्ट है, फिर वो ट्रैफिक रूल्स बहुत अच्छा है। हाँ, सबसे अच्छा चीज ट्रैफिक रूल लगा है। नो हॉर्न वाला सिस्टम, मतलब शोर वोर ज्यादा नहीं है, हरियाली है, साफ सुथरा, एकदम शिमला वाला फील आ रहा था। अच्छा। हाँ भाई, आपको कैसा लगा? बहुत ही क्लीनेस्ट लग रहा था, और नेचुरल इन्वायरमेंट भी बहुत। बिहार से कितना अलग है? बिहार से तो बहुत अलग है, वेरी डिफरेंट। सफाई होती है बिहार में? सफाई है, लेकिन यहाँ जितना यहाँ है उतना तो नहीं है।
तो यहाँ अब आप लोग जब देख के जाएंगे यहाँ से तो अपने गांव वालों को कहेंगे कि भैया अपना अपना गांव भी ऐसे बना लो। बिल्कुल कहेंगे ऐसा, तो बिल्कुल ऐसा होना भी चाहिए। हाँ, आप बहुत ही अलग है, कंपेयर करें ना अपने यहाँ से तो यहाँ के लोग भी बहुत मेहनती है, टूरिज्म को इतना बढ़ावा दिया गया है और सफाई यहाँ बहुत अच्छे से करी गई है, बहुत ही अलग है कंपेयर किया अच्छा, जाए। ऐसा लगता है आप लोग तो स्टूडेंट हो चुकी कि ये संभव है कि जो इस गांव के लोगों ने किया वैसा ही हम अपने यूपी में या बिहार में या झारखंड में भी कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं अगर गवर्नमेंट थोड़ा सपोर्ट करे। और गवर्नमेंट तो सपोर्ट करेगी, अंदर खुद के इंसान को अंदर से वो होना चाहिए कि थोड़ा करना है, कुछ अलग करना है, वरना डेली लाइफ में फंसे रह जाते हैं सब, तो कुछ नहीं कर पाते। मतलब घर से बालकनी से निकला और कूड़ा यूं फेंक दिया कि नगर निगम वाला आएगा तो उठा के ले जाएगा। बल्कि यहाँ की सफाई देख के तो ऐसा लगा कि खुद से, अगर जैसे अभी आए एकदम से रैपर फटा तो फिर लगा सफाई है, तो फिर खुद से जाके डस्टबिन में आता है, फील आता है कि अब डस्टबिन ढूंढो पहले। जैसे दिल्ली मेट्रो में चढ़ते हैं हाँ। तो दिल्ली मेट्रो में कोई नहीं फेंकता है, बाहर आते ही जो है थूकने भी लगते हैं, फेंकने भी लगते हैं। क्योंकि सफाई होती रहती है तो देख के यहाँ आके आपको ये लगा कि यहाँ पे कोई डस्टबिन में ही डालेंगे। हाँ, ये बात तो लगी हमको। तो यहाँ से निकल के जाएंगे कि आदत रहेगी कि फिर फेंकेंगे? रहेगी। कुछ प्रेरणा मिली? हाँ, पेड़ा मिली, ये साफ सफाई से अच्छा लगता है पूरा, बढ़िया लगा। हाँ। माहौल भी साफ सुथरा लग रहा है, इसको देख के मोटिवेशन भी मिल रहा है अंदर से कि ऐसा हर जगह रहेगा तो कितना अच्छा लगेगा, चारों तरफ इन्वायरमेंट वगैरह। सफाई रहती तो पीस भी आता है, एक अलग ही वाइब आता है, डिफरेंट वाइब रहता है यहाँ का, पीसफुल माहौल है बहुत। तो यही इस गांव की खासियत है कि अगर कोई यहाँ आता है तो खुद से ही उसको साफ़ सफाई देख के इच्छा नहीं होती है कि चिप्स खाया तो उसका पैकेट फेंक दिया, या कुछ भी अपने पास जो कचरा है उसको उठा के फेंकने से पहले आदमी 2 बार सोचता है और फिर वो हाथ से बने हुए डस्टबिन में छोटे छोटे जो चीज़ें हैं वो फेंक देता है। उसी तरह से ये स्टूडेंट जो NIT में पढ़ते हैं वो भी यहाँ आए, प्रेरणा मिली, और हम उम्मीद करते हैं कि ये स्टूडेंट्स, मैं खुद, हमारी टीम और जो इस वीडियो को देख रहे हैं हर कोई इस गांव को देखकर एक प्रेरणा लेगा और अपने गली मोहल्ले को साफ़ करने की कोशिश करेगा। फ़िलहाल मैं और मोहन मेघालय में और कुछ ज़िलों में चलेंगे, चुनाव यात्रा के कुछ और रंग में देखेंगे, लेकिन फ़िलहाल ये गांव हमारे लिए, आपके लिए शायद एक इंस्पिरेशन होगा। इसी उम्मीद के साथ चुनाव यात्रा जारी है। देखते रहिए द ललन टॉप।